Next topic is odd even function. Odd even function. Okay, now imagine the question is this: minus pi by 2 to pi by 2 under root of cos x minus cos cube x. If I simplify this, this will become minus pi by 2 to pi by 2 under root of cos x 1 minus cos square x dx. And if I simplify this, minus pi by 2 to pi by 2 under root of cos x mod of sin x dx. Okay, now looking at this, मुझे पता है कि mod of sin x will ultimately become an even function. सबसे पहला mod है, and cos of root of cos x, तो cos x तो अपने आप ही even है. Cos x is an even function. Cos of minus theta is cos theta. And now when I solve this, मुझे पता है कि this will become twice. So this will become twice. So my question will become like this: I is equal to integration twice 0 to pi by 2 root of cos x into sin x dx. So I will take cos x as t minus sin x dx is equal to dt. So I can solve this as I is equal to twice integration 0 to pi by 2 root t minus dt. Now you can eliminate the minus sign. You can eliminate the minus sign, or you can directly solve it, take the minus sign outside, उसके बाद upper limit minus lower limit. Whatever is convenient for you, you can go by that method. So you can solve it after this. Next, I is equal to integration I is equal to integration minus 1 to 1 fractional part of x plus 1 into x square plus 1 into fractional part of x plus 1 plus fractional part of x square plus 2 into fractional part of x plus 2 dx. Now, once I solve this, fractional part of 1 0 हो जाता है. तो fractional part, see we know that fractional part का मतलब होता है fraction आएगा. So the fractional part of x square plus 1 is x square. Fractional part of x plus 1 is x. Fractional part of x square plus 2 is x square, and fractional part of x plus 2 is x. एंड अगर मैंने बेसिकली क्या हो गया पता है क्या, ये दोनों सेम ही टर्म्स हो गए. ट्वाइस माइनस 1 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx. ओके, अब फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, you have to understand, we'll take a remark कि greatest integer function and fractional part are nano function. So greatest integer function and fractional part are nano function.
So we understand that nano function matlab they are neither even function, they are neither odd function. So they are nano function, neither even nor odd function. ठीक है. अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ट्वाइस आ गया है फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब मुझे अगर सॉल्व करना है, से फॉर एग्जांपल आई हैव टू चेक समथिंग कि एफ ऑफ दिस इज द इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू. सो ट्वाइस ऑफ -1 to 1. अभी देखो till after this see what we'll do is I'll take f of x plus f of minus x. ठीक है, f of x plus f of minus x. I am not going to simplify anything. अगर मुझे f of x दिया है और मुझे f of minus x दिया, see this is f of x that is given to me. Now अगर मैंने इसकी जगह f of minus x डाला, say for example f of minus x, let's take it here. If I take f of minus x, अब f of minus x देखो क्या हो जाएगा, it will become x square. ठीक है. If I have to solve, okay, fraction greatest integer plus fractional part. अब f of minus x निकालते हैं और ऐड करके देखेंगे क्या होता है. If I solve this, this will become minus x plus x square इंटू माइनस एक्स. ओके, कुछ नहीं किया है, x की जगह 1 माइनस एक्स हो जाएगा. सो इन प्लेस ऑफ x इफ आई पुट माइनस एक्स तो दिस विल बिकम माइनस एक्स हो जाएगा. सो आई हैव गॉट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट और नैनो फंक्शन से काम करेंगे. चलिए आंसर आ गया, ट्वाइस आ गया मेरे पास. ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर करेंगे तो. देखो ऐसे मेथड से मत करो. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. So this will become x square, fractional part of x is nothing but 1 minus x plus x square 1 minus x, which will become minus x. Actually वही हो जाएगा minus 2x. ठीक है, minus 2 x square into x. So f of x plus f of minus x. Now this is your f of x. इसको पूरा f of x है. देखो ये ना, ये पूरा पार्ट वो f of x है. अगर ये पूरा पार्ट f of x ले लिया है हमने, so this will become x square into x plus x square into x. Okay, so this will become twice, which is become be 0. F of x, f of minus x. इसमें कुछ तो मिस हो गया अपना. Wait 1 minute. F of x plus f of minus x. ठीक है. एक्चुअली ये माइनस बाहर नहीं आएगा यहाँ पे. माई मिस्टेक गाइस, मैंने गलती से लिख दिया माइनस एक्स है. सेम थिंग ही हो गया बेसिकली. सो एफ ऑफ एक्स, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है 2 और यह है माइनस एक्स. सो अगर मैंने इसको सॉल्व किया ट्वाइस एंड आई हैव टेकन एक्स स्क्वायर आउटसाइड, अंदर बचेगा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स. गाइस x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, x का वैल्यू ले लिया 0.9, x का वैल्यू ले लिया. एक काम करते हैं, चलो x का वैल्यू हम लोग ने 1.9 ले लिया. गाइस अगर x का वैल्यू, ये मैंने गलती लिख दिया था, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, माई मिस्टेक गाइस, ये माइनस एक्स ही रहेगा. गाइस अगर मैंने x का वैल्यू 1.9 ले लिया, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9? 0.9.
And can you tell me what is the fractional part of -1 point? Which is 0.1. Guys, 0.9 plus 0.1 कितना आएगा? कोई भी वैल्यू लो, कोई भी ऑफ योर चॉइस. टेक 3.3. तो अगर मैंने 3.3 लिया, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 और -0.3 का इट विल बिकम 0.7. इट विल ऑलवेज बिकम 1. तो अब देखो ये क्या हो जाएगा पता है क्या? ये हमेशा 1 होगा. एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स हियर? अब ये हमेशा 1 होगा. Whenever there is negative, what do we write? We write 1 minus x, right? ठीक है. So 1 minus x हो जाएगा and whatever is the answer, that is the part that you get. Did you understand बेटा? So यहाँ पे this becomes 1. अब देखो ये ना twice हो गया. अब कुछ भी नंबर लो तो even हो जाएगा. So once this becomes even, this will become I is equal to integration. अब देखो मेरा लिमिट क्या रहेगा? Twice integration 0 to 1. Okay? Twice integration 0 to 1. अब यहाँ पे देखो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. नाउ एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट आई एम अवेयर ऑफ ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 1. फ्रैक्शनल पार्ट इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. अब कोई बताएगा मुझे, अगर 0 to 1 का मैंने कोई भी वैल्यू लिया एक्स का, 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लिया, आई रिपीट 0 to 1 के बीच में मैंने कोई भी वैल्यू लिया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 to 1 के बीच में टेक एनी नंबर. 0.9. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9? 0. तो सेकेंड पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर बाय 2. कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1. सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 0. ठीक है, तो दिस इज, एक मिनट मैंने कुछ मिस किया है क्या? हाफ नहीं हो. ठीक है, ये ट्वाइस था ना, पहले से मेरे पास ट्वाइस है एंड वो 4 टाइम्स हो जाएगा शायद. आंसर ट्वाइस आ गया था, ये ट्वाइस, वो ट्वाइस, दिस ट्वाइस ऑफ दिस, ये इवन हो जाएगा. नहीं एक्चुअली बराबर है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका आंसर बना है. आई स्टिल चेक, मेरे को लगता है इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है. आई स्टिल चेक दिस सम. ठीक है, एज ऑफ नाउ इतना तो राइट लग रहा है. आई स्टिल चेक दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. ट्वाइस ऑफ ये हो गया ना, ट्वाइस ऑफ दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन फंक्शन. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सी ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट जब इंडिविजुअली आएगा तो दे आर गोइंग टू बी नैनो फंक्शन. यहाँ पे स्क्वायर आ गया. सो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे को ट्वाइस आ गया. ट्वाइस आ गया मतलब इट इज़ गोइंग टू बी इवन फंक्शन. इफ एफ ऑफ प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो ऑड फंक्शन. बट 0 नहीं हो रहा है, इवन फंक्शन हो रहा है, तो वी सॉल्व इट बाय दिस मेथड. नेक्स्ट, -π/2 to π/2. ठीक है, नाउ दिस इज एफ ऑफ एक्स.
ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ मेरा बेसिकली, ओके। तो ये नैनो फंक्शन हो गया बिकॉज यू नॉट गेटिंग द सेम थिंग। नैनो में हमेशा क्या करना है पता है क्या, वेन एवर यू गेट अ नैनो फंक्शन कुछ नहीं करना है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, नैनो फंक्शन हो गया तो कुछ नहीं करना है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2। इफ आई सॉल्व दिस देखो क्या हो रहा है, सॉरी ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऐड देम गाइज, अगर मैंने ऐड किया सो 1/11x + 1 sin raised to 12x अपॉन sin raised to 12x प्लस cos raised to 12x प्लस सेकेंड वर्ड देखो क्या है, 11x अपॉन 11x + 1 इंटू sin raised to 12x अपॉन sin raised to 12x प्लस cos raised to 12x, ठीक है। And if I add them 0 to π/2, I will get sin raised to 12x, sin raised to 12x plus cos raised to 12x, and अंदर बचेगा 11x + 1 अपॉन 11 raised to x + 1 dx। ये निकल गया, ये निकल गया। And we know that if I solve it, my answer is going to be π/4 because the shortcut is b minus a/2. b is π/2, a is 0, p minus a/2. This is going to be your shortcut, okay. Now I is equal to integration minus 7 π/2 3 π/2 x plus pi the whole cube plus cos of x plus 3 pi dx, ओके, बीच में प्लस साइन है, ओके। ना cos ऑफ x प्लस 3 पाई दिए, ओके। अगर दोनों सेम रहता था ना तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगता था, सो विल ट्राई टू कन्वर्ट इट minus 7 π/2 3 π/2 x plus pi the whole cube plus cos of 2 pi plus x plus pi dx। फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा एंड सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा -7 π/2 to 3 π/2 x plus pi the whole cube plus cos of, अब ये हो जाएगा x plus pi dx। अब समझ में टेल में क्या रहे, cos pi plus थीटा ले लो। देखो cos pi plus थीटा लेने का प्रॉब्लम नहीं है, थिंग इज इट बोथ हैज़ टू बी एट द सेम फ्रीक्वेंसी, सो ये सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। तो आई टेक x plus pi t, आई विल गेट dx इज इक्वल टू dt x t minus 7 π/2 and 3 π/2। गाइस x की जगह आई विल पुट -7 π/2, -7 π/2 plus pi will become -5 π/2, ओके। एंड यहाँ पे 3 π/2 डालते, 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5 π/2।
अब one type gives rise to another type, so this will become I is equal to minus 5 pi by 2 upon 5 by 2 t cube प्लस cos t dt, ठीक है, t क्यूब प्लस cos t dt। अब आई वुड सजेस्ट सेपरेट कर दो, माइनस 5 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2 टी क्यूब डी टी प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2 कॉस टी डी टी। ये देख के मालूम पड़ रहा है ऑड है, दिस इज ऑड। देखो कैसा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, इट इज़ ऑड, देखो आंसर ज़ीरो। फर्स्ट पार्ट का आंसर ज़ीरो हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू कॉस टी, एक्सक्यूज मी, एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एफ ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देयरफॉर इट इज़ इवन फंक्शन। अब हमको पता है इवन फंक्शन का रूल क्या है, अगर इवन फंक्शन है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सो आई राइट आई इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 5 पाई बाई 2 कॉस टी डी टी, कॉस का इज साइन, तो ऐसे करेंगे 2 साइन टी 0 to 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो माई आंसर वुड बी ट्वाइस ऑफ 5 पाई बाई 2 इज़ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, द आंसर इज 2। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? Anybody has any doubts here? Same pattern, no? Same pattern sums, same pattern sum. Say for example, my question is this: I is equal to integration minus 2 to 0 x cube plus 3x square plus 3x plus 3, okay, plus x plus 1 cos x plus 1 dx, ठीक है, x plus 1 cos x plus 1 dx। अब मुझे पता है कि मुझे x plus 1 का ग्रुपिज्म करना है। अब देखो मैं x plus 1 का ग्रुपिज्म कैसे करूँगा, x plus 1 द होल क्यूब प्लस x plus 1 cos x plus 1 प्लस x plus 1 cos x plus 1 प्लस 2, ठीक है, ये पूरा हो गया। ये dx है मतलब ऐसा है, ठीक है, इंटू dx, ओके। एंड नाउ अगर मुझे सॉल्व करना है, मुझे कुछ नहीं करना, आई हैव टू टेक x प्लस 1 एज t। अगर मैंने x प्लस 1 को t ले लिया, dx विल बिकम dt एंड माई लिमिट्स x और t इज़ फ्रॉम -2 to 0। अगर मैंने यहाँ पे -2 डाला, ये हो जाएगा -1, और अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला, हो जाएगा 1। सो I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 t क्यूब प्लस t cos t प्लस 2 dt। अब t क्यूब एंड t cos t, मुझे पता है कि t क्यूब और t cos t तुमको डायरेक्टली सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व दिस, एक्सप्रेशन को t ले लिया, -1 to 1 हो गया, तो तुमको सेपरेट करके करना है। प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अब 2 इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब तुमको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑड, इसका आंसर 0 आएगा, दिस इज़ ऑड, इसका आंसर 0 आएगा। सो लास्ट में आई इंटीग्रेट -1 to 1 dx विच इज़ ट्वाइस x -1 to 1 विच इज़ 2 into 1 plus 1। Did you understand this? तो मेरा आंसर क्या रहेगा फिर? The answer is going to be 4। Any doubts? देखो ये ऑड फंक्शन है, क्यूब फंक्शन, पावर ऑड है, ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा।
और ऑड का आंसर क्या है? व्हेनेवर आई सॉल्व इंटीग्रेशन ऑड का आंसर क्या आएगा गाइस? इट इज़ गोइंग टू बी 0. तो ऑड का आंसर होगा 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. I is equal to integration -1 to 1 2x raised to 332 plus x raised to 998 plus 4x raised to 1668 into sine of 691x dx upon 1 plus x raised to 666. लवली क्वेश्चन. मुझे देख के मालूम पड़ रहा है ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है. नाउ फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर इज इवन, सेकेंड पार्ट न्यूमरेटर इज इवन, थर्ड पार्ट न्यूमरेटर फर्स्ट part is even, second part is odd because it is sin x raised to 691. So this the third part 4x 1668 into sine of 691x. अगर इसको मैंने f of x ले लिया तो इसका f of minus x will become, first part will not change, into second part will become minus sine of 691x. So f of minus x will become minus f of x. Therefore ये odd function है. तो last part है ना 0 हो गया. Guys, my last part has become 0. My last part has become 0. अब अगर मैंने इसको सेपरेट करके सॉल्व किया, बीच में ना एक काम करो, थोड़ा ना लेंदी कर देते हैं, इसको ना प्लस कर दो. चलो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तुम लोग को और इजी हो जाएगा. इसको निकाल दो. चलो लेट्स इग्नोर दिस. ठीक है, ये हो गया ऑड फंक्शन. ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा. इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू सॉल्व दिस सम. ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट ऑड फंक्शन होगा. अब हम बाकी सबका इवन हो जाएगा. तो देखो इवन कैसे करेंगे. मैंने लिया ट्वाइस. ठीक है, 0 to 1 यहाँ पे डाल रहे हैं, लिमिट डाल दिया. ट्वाइस. अब आएगा अंदर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन x raised to 332 upon 1 plus x raised to 666 dx plus integration x raised to 998 upon 1 plus x raised to 666 dx plus 4 integration x raised to 1668 upon 1 plus x raised to 666 dx. बताओ कैसे करेंगे. थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, एक्चुअली बहुत लेंदी हो जाएगा. एक काम करो, इसको ना मल्टीप्लिकेशन ही रखो. लेकिन एज मल्टीप्लिकेशन गाइस. 4x रेज टू 1668 एंड हो जाएगा 4x रेज टू 1668. तो और हो जाएगा. इसको निकाल दो. फोकट में इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. चलो नाउ कैन यू टेल मी हाउ कैन वी प्रोसीड विद द सम. बोलो. Tell me, how will you solve this sum? Basic. 332, 666. How will you solve this sum? Can you take 1 plus x raised to 666 equals t? Okay, उससे क्या होगा? 666 x raised to 665 हो जाएगा. 3 into
666 इंटू 3 इज़ 998. ठीक है, गुड. इंटू 3 इज़ 990. बट इफ़ आई, अच्छा चल इसका अलग सब्स्टिट्यूशन, इसका अलग, कैसा बोल रहा है, ऐसे कर लो ना. x रेज टू 333 the whole square is x raised to 666. Did you understand this? X raised to 333 into x raised to 333 will become x raised to 666. इससे क्या होगा, कुछ नहीं, x raised to 333 को t ले लो. अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या रहेगा. 333 x raised to 332 dx is equal to dt. Did you understand this? यही तो है मेरे पास. You understand this? इससे क्या करेंगे बेटा, बोलो. हाँ, तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर लॉन्ग डिवीजन. अभी ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो लेट मी हेल्प यू आउट हियर. ठीक है, पे अटेंशन. सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा. ये क्या दिख रहा है तुम लोग को, 2 दिख रहा है क्या, 2. ठीक है, देखो ध्यान से. ट्वाइस 0 to 1 x रेज टू 332 प्लस x रेज टू 332 प्लस x रेज टू 998 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 666 dx. ये तो सबको पता ही है, बराबर. अब सुनो, इंटीग्रेशन है ये. ट्वाइस बाहर है, 0 to 1 यहाँ. इंटीग्रेशन x रेज टू 332 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 666 dx. ये दोनों में ना कुछ तो कॉमन दिख रहा है मेरे को. इफ आई टेक x रेज टू 332 कॉमन, आई विल गेट 1 प्लस एक्स रेज टू 666 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 666 dx. And is equal to twice 0 to 1 integration x raised to 332 upon 1 plus x raised to 666 dx plus integration x raised to 332 dx. अब अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, twice 0 to 1 x raised to 332 1 plus x raised to 333 the whole square dx plus integration x raised to 332 dx. I'll take x raised to 333 as t. 333 x raised to 332 dx is equal to dt. x and t 0 and 1. अगर ये 0 है तो ये 0 है, ये 1 है तो ये 1 है. तो I इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट 0 to 1 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1/333 आएगा यहाँ पे. ठीक है, प्लस इसका तो नॉर्मली हो जाएगा x रेज टू 333 अपॉन 333. इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, x रेज टू 333 अपॉन 333. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? एनी प्रॉब्लम? इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? फर्स्ट पार्ट विल बिकम व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर. It will become tan inverse t. So this will come twice 0 to 1 tan inverse 3 plus x raised to 333 upon 333. It will become twice tan inverse 1 plus 1 अपॉन 333 माइनस
0. So twice of pi by 4 plus 1 upon 333. This will become pi plus 4 upon 666. This is the final answer. Okay. लंबा सम चल गया. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूटन लाइबनिट्ज फॉर्मूला. ओके, न्यूटन लाइबनिट्ज फॉर्मूला. अब it is given as like this: d by dx of integration is equal to f of upper limit into derivative of upper limit, अरे हमेशा रॉन्ग है ना, into derivative of upper limit minus f of lower limit into derivative of lower limit. ठीक है, into derivative of lower limit. So ये हो जाएगा so that if you have a type you can directly in one step get the answer. अब कैसे, मैं क्वेश्चन देता हूँ. जब फंक्शन दिया रहेगा, याद रखो फंक्शन f of x इज इक्वल टू, नीचे है एक्स स्क्वायर, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 e रेज टू माइनस टी स्क्वायर डी टी. ओके, अब सबसे एक लाइन में आंसर आता है. कैसे? लुक एट द फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले अगर मैंने इसको डेरिवेट किया, इफ़ आई डेरिवेटेड, अब प्रॉब्लम वही है कि अगर मुझे इसको न्यूटन लाइबनिट्ज करना है, इफ़ आई हैव टू डू न्यूटन लाइबनिट्ज, इसमें होगा एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. तो देखो, अगर एफ ऑफ माइनस टी स्क्वायर दिया है तो एफ ऑफ अपर लिमिट, तो देखो क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. दैट्स इट. सो यू हैव गॉट इन वन स्टेप. सिंप्लीफाई करके कोई टेंशन नहीं है, यू कैन डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे भी फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन, ये भी फंक्शन है. ऑल आई हैव डन इज एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं. न्यूटन लाइबनिट्ज याद रखना है. y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to x क्यूब log t upon t dt. So f of upper limit, that is log x cube, f of upper limit into derivative of upper limit minus f of lower limit into derivative of lower limit. Okay, and now f of upper limit into derivative of upper limit, f of lower limit into derivative lower limit. अगर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे ये 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम log x इंटू 9x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 0. ये निकल गया, ये निकल गया, विच इज़ 9 log x, 9 log x upon x. This is your answer. Okay, f of upper limit, derivative of upper limit, f of lower limit into derivative of lower limit. Okay, now if
डी वाई डी एक्स ऑफ 0 to y cos t dt is equal to d by dx of 0 to x square sin t dt. Then dy by dx is equal to question mark. Okay, dy by dx is equal to question mark. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस दिया है, कुछ नहीं करना है. अगेन विल सॉल्व दिस. अब देखो, ध्यान से देखो, दिस विल बिकम cos ऑफ y इंटू डी बाई डी टी ऑफ वाई. ओके, डी बाई डी टी ऑफ वाई माइनस cos 0 इंटू डी बाई डी टी ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर. वही दिया ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स है. सॉरी, डी बाई डी टी नहीं है, डी बाई डी एक्स है. ओके, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है माइनस साइन ऑफ 0 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 0. अब मुझे पूछा है फाइंड डी बाई डी एक्स. ठीक है, सिंपल सी बात है. कॉस वाई ऐसे ही रहेगा, एक्स है. सो दिस विल बिकम कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स 0 इज इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस वाई. कॉस वाई, अरे यार यहाँ पे स्क्वायर था गाइस, गलती से मैं भूल गया बताने में. यहाँ पे वाई स्क्वायर विल बिकम 2y. यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू 2y. सो कॉस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये 2 निकल गया. ठीक है, सो माई आंसर बिकम x साइन एक्स स्क्वायर ऑन y कॉस वाई स्क्वायर. x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन y कॉस वाई स्क्वायर. ओके, now definite integration as limit of a sum. Definite integration as limit of a sum. Okay, say for example मेरा फंक्शन इज बाउंडेड बाय a to b f of x dx. ठीक है, a to b. अब इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? इट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू कैपिटल है, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू f of x इन द x एक्सिस. ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Now,
मेरे एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू एन एक्स इज इक्वल टू बी। अब समझो इक्वल एरिया है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एरिया है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग। इक्वल एरिया लेंगे, चलो समझो ये इक्वल एरिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, ठीक है, पे अटेंशन टू दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इफ फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी 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 एक रेक्टेंगल बन रहा है, अब सब रेक्टेंगल बन रहा है। ना लुक हियर, ये रेक्टेंगल है और ऊपर छोटा रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल है उसके ऊपर छोटा रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल उसके ऊपर छोटा रेक्टेंगल, यहाँ पे बड़ा रेक्टेंगल इसके ऊपर छोटा रेक्टेंगल। अब ये जितना भी लिखा है ना, ये सब इक्वल विड्थ है, तो इस सब का विड्थ इक्वल रहेगा। ओके, राइट डाउन, इफ विड्थ इज मोर, if width is more, area will be calculated incorrect. If width is more, area will be calculated incorrect. Next point, area will be calculated between two strips. Area will be calculated between two strips when it is a rectangle. When it is a rectangle, that is, when it is a rectangle, that is, when it is L into B. When it is L into B. ओके, यहाँ मैंने डायग्राम में भी लिख दिया ना इक्वल विड्थ, इसका ना इक्वल विड्थ रहेगा। ओके, इक्वल विड्थ। नेक्स्ट वन लिखो, वी हैव बिगर रेक्टेंगल एंड स्मॉलर रेक्टेंगल। We have bigger rectangle and smaller rectangle. B is equal to, अच्छा विड्थ बहुत स्मॉल रहेगा, तो इक्वल विड्थ रहेगा बहुत स्मॉल रहेगा। B is equal to A plus NH. B is equal to A plus NH. Therefore, H is equal to B minus A the whole upon N.
therefore h is equal to b minus a the whole upon n. ठीक है, अब देखो यार, पहला x इज इक्वल टू a है, ठीक है, देखो देखो देखो, पहला है x इज इक्वल टू a, नेक्स्ट रहेगा a प्लस एच, नेक्स्ट रहेगा a प्लस 2h, एंड उस तरह से मेरा b रहेगा a प्लस एन एच, ठीक है, एंड हाइट विल बी f of a plus h and so on and so forth, ठीक है, f of a plus h, f of a plus 2h 3h 4h चलता रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहला एरिया, ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, सम ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, area sum of smaller rectangle, that is L cross B, that is L cross B, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ मुझे पता है, विच इज़ नथिंग बट h इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है। ऑब्वियसली पहला हम लोग h इंटू एफ ऑफ ए से करेंगे, प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, एंड डॉट 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 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस, देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे गया, h इंटू ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है, n माइनस 1h, which is nothing but summation h तो constant ही है, and this will become f of a plus rh, okay, and अगर हमको इसको solve करना है, this will become summation from r is equal to 0 to n minus 1, it will become f of a plus rh, ठीक है, because n minus 1 तक है और यहाँ पे 0 से है, तो देख के मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे h का वैल्यू 0 डाला तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे h का वैल्यू n माइनस 1 डाला तो ये आ जाएगा। सो इट इज़ फ्रॉम समेशन h समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, दिस इज दस, ओके। ये स्मॉलर रेक्टेंगल था, दिस इज स्मॉलर रेक्टेंगल। नेक्स्ट सम ऑफ बिगर रेक्टेंगल्स, सम ऑफ बिगर रेक्टेंगल्स, h into f of a plus h, h into f of a plus 2h, h into f of a plus nh। तो गोइंग बाय दैट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं h समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टिल n f of a plus rh, ठीक है, क्योंकि अगर r का वैल्यू 1 डाल दिया तो पहला इक्वेशन आ रहा है, r का वैल्यू n डाल दिया तो लास्ट इक्वेशन आएगा। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? अब यू अंडरस्टैंड दिस कि नॉर्मल, स्मॉलर और रेक्टेंगल के बीच में मेरा पूरा फंक्शन है, ए टू बी के बीच में बन रहा है जो भी बन रहा है। सो आई विल राइट, ऐसे रहते हैं, h छोटा वाला रेक्टेंगल जो था r इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of x dx is less than equal to this one, h summation r is equal to 1 upon n f of a plus आर एच, ठीक है, बीच में आ गए, ठीक है। अभी इसके बीच में एक रिमार्क लिख देंगे, ठीक है, अगर f of x इंक्रीजिंग है, अगर f of x इंक्रीजिंग है,
अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, देन वी राइट दिस कंडीशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच समेशन आर इज इक्वल टू 1 अप टिल एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब दिस आर इज इक्वल टू 1 अप टिल एन, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बस डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये आ जाएगा एच समेशन आर इज इक्वल टू 1 अप टिल एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 अप टू लेस देन इक्वल टू एच समेशन आर इज इक्वल टू 0 अप टिल एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो गाइज उल्टा हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ओके। एंड द लास्ट स्टेप, ओके, इसके बाद रिमार्क्स भी देंगे, बट ये ध्यान में रखेंगे बच्चे लोग कि इसके बाद आई विल राइट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बिकम एच टेंड्स टू 0 n tends to infinity summation r is equal to 0 n h into f of a plus r h, ठीक है। अब मेरे पास h का वैल्यू है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ये हम पहले भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, दिस इज़ h का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n, इसलिए हमने n टेंस टू इन्फिनिटी डाला था। सो देखो ये क्या हो जाएगा, आई विल राइट, ये लिमिट है यहाँ पे, लिमिट है और गलती से लिखा नहीं मैंने, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 0 अप टिल एन बी माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन into r, ओके, b माइनस ए इंटू एन इक्वल टू आर। एंड अगर मैंने 0 to 1 ले लिया, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन summation r is equal to 1 up till n 1 minus n f of r by h 1 by n f of r by h, okay. Now please write down, देखो, in questions of limit as a sum, in questions of limit as a sum, in questions of limit as a sum, first point आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज देखो यार जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हमने अभी लिखा, वी हैव टू सम इट अप। हाउ विल वी सम इट अप? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिमिट ऑफ अ सम है? सबसे पहले ये छुपा हुआ रहेगा n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही तुम लोग क्वेश्चन में n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया, एट द बैक ऑफ द माइंड ये सोचना है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। बी पार्ट, सीरीज विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी पार्ट सीरीज विथ प्लस और मल्टीप्लीकेशन सीक्वेंस। सीरीज विथ प्लस और मल्टीप्लीकेशन सीक्वेंस। अब देखो इसमें ना ऐसा मत सोचो, ऐसे ये भी लिख रहा हूँ, चलो ये लिख लो, देयर वोंट बी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड,
सिंपल है, प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन, यही रहेगा। तो ये मत सोचो कि प्लस माइनस रहेगा या ऐसा ऐसा लिखो, चलो ये मत सोचो कि ऐसा रहेगा कि प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं रहेगा। या तो प्लस सीक्वेंस रहेगा या तो मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस रहेगा। आई एम टेलिंग यू दिस ऑल्सो, कौन सा सीक्वेंस रहता है, या तो प्लस सीक्वेंस रहेगा या तो मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस रहेगा। बट ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मेथड कि चेंजेस क्या क्या अवेलेबल है। अब देखो बहुत कम बुक्स में ना ये अवेलेबल है कि चेंजेस क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहला पार्ट ए, समेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन, समेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन। बी पार्ट, r upon n will be replaced by x. C, 1 by x के जगह बन जाएगा dx। तो देखो इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx, ओके। D, how will you find upper limit? How will you find upper limit? तो limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, upper value of r divided by n, upper value of r divided by n, and lower limit will be limit n tends to infinity, lower value of r divided by n। ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल आई गिव सो दैट यू अंडरस्टैंड। लिमिट ऑफ द सम तो बहुत ईजी है। अब डिफ्रेंशिएट करना है तुमको एग्जाम में कि लिमिट ऑफ द सम है कि नॉर्मल है, इंटीग्रेशन। सो r बाय n, ठीक है, r बाय n। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो r बाय n दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो क्या करेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन हियर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान देंगे सब लोग। इसको मैंने ले लिया 1 बाय n, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टिल n, टू n, r अपॉन n रूट ऑफ r स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स योर फ्रेंड्स? ठीक है, 1 बाय n भी दिया है मेरे पास, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n पर टेंस टू इन्फिनिटी दिया है। अब क्या क्या कभी कभी चेंज होगा वो इम्पोर्टेंट है, ओके। r बाय n बनेगा x, आई रिपीट r बाय n बनेगा x, r स्क्वायर n बाय n स्क्वायर रहेगा और लिमिट चेंज रहेगा। अब यहाँ से n स्क्वायर ले लिया कॉमन, ये r बाय n हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 बाय n, ये हम 1 बाय n भी दिया, 1 बाय n ही दिया ना वो, 1 बाय n, यस 1 बाय n इज गिवन टू मी, ओके। सो इसको एक काम करते हैं, इसको अंदर लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लिया, r इज इक्वल टू 2। अच्छा बोलो सबसे पहला, व्हाट ऑल चेंजेस विल हैपन गाइस? सो ये r बाय n हो जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर लें, चलो अपर लिमिट चेंज करते हैं। व्हाट इज अपर लिमिट? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज 2n अपॉन n विच इज इक्वल टू 2, लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 by n which is 0,
एनी डाउट सर? ठीक है, 1/n/2 हो गया। अब अगर मैंने लिमिट चेंज किया, इंटीग्रेशन 0 to 2, r/n इज रिप्लेस्ड बाय, एक्चुअली 1/n है, x है, वो x n नहीं है, ये x है, मैं हो जाता x है ये, ठीक है। अब 1/x बनेगा dx, समीशन बन गया इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज। अब बचा है r/n का वैल्यू, विच विल बिकम x अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। जैसे x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको ना मैंने ऐसे कर दिया, टू इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर मैंने रूट x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया तो 2x dx आ जाएगा, सो दिस विल बिकम, माई न्यूमरेटर इज डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दिया है मेरे को, सो इसको आई कैन राइट इट एज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, सो दिस विल कम रूट 5 माइनस 1, दिस इज द आंसर, रूट 5 माइनस 1। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? चलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल रेज़ टू 1/n अपॉन n, ठीक है, n फैक्टोरियल रेज़ टू 1/n अपॉन n। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन रेज़ टू फंक्शन आ गया। तो देखो क्या करेंगे, आई राइट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू n द होल अपॉन 1/n, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखा इसलिए 1 2 3 4 5 n-2 n-1 n, वही उल्टा लिखा मैंने। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नीचे देखो n रेज़ टू n, n n n n n n n raised to 1/n. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू मी। अब मैंने बोला था फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, हम लेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरे फंक्शन में गाइस लॉग लग जाएगा, ठीक है। तो मैं पावर भी नीचे ले जाऊँ, 1/n log of 1 2 3 n raised to 1/n। Anybody has any doubts here? अगर तुम ध्यान से देखोगे, so this will become limit n tends to infinity 1/n log of, देखो 1/n नहीं आएगा यहाँ पे, पावर नीचे आ गया ना, log of 1/n प्लस log of 2/n प्लस log of n/n। Did you guys understand this? Because log का multiplication becomes this way. Anybody has any doubts here? अब ये देखो ना, r का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, r का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, so here I will write limit n tends to infinity summation r is equal to 1 up till n log of r upon n, ठीक है, इंटू 1/n।
अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना. Now, when we change this will become, मेरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा. So according to the formula, my upper limit is upper value of r divided by n. Upper value of r is n divided by n, which is going to be 1. Upper value of r divided by n, तो n divided by n which is going to be 1. तो इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1, समेशन हो गया इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा बिकॉज लोअर लिमिट इज़ 1 डिवाइडेड बाय n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. log rn is going to be log x and 1 upon n is nothing but dx, and इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. So log x into x minus 1 by x into x dx from 0 to 1. This is x log x minus x from 0 to 1. So this will become minus 1 minus 0. ठीक है, -1 -0 तो हो जाएगा -1. तो log y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू e रेज टू -1 इज इक्वल टू 1 बाई e. बेसिकली ln से सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द सम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Last question, limit of a sum, and the chapter gets over. Last sum of the chapter. Limit n tends to infinity. 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2, 1 upon n plus 3n. ठीक है, लिमिट n tends to infinity है. मुझे देख के मालूम पड़ रहा है. ये होगा r इज इक्वल टू 1, सॉरी ये n प्लस आर है, अप टिल 3n, n प्लस आर, n प्लस आर. सो दिस इज समेशन ऑफ 1 अपॉन n प्लस आर. दिस इज समेशन 1 अपॉन n प्लस आर. अब कुछ नहीं करना है, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन. व्हेन आई डिवाइड इट दिस विल बिकम 1 अपॉन n, दिस इज 0, दिस विल बिकम 3, इसको कॉमन ले लिया 1 अपॉन n, दिस विल बिकम 1 अपॉन r प्लस n, which will become integration 0 to 3 1 upon r plus n into 1 upon n. Is equal to integration 0 to 3 1 upon n becomes dx upon 1 plus x, dx upon 1 plus x. ये हो गया log ln. So ln mod 1 plus x from 0 to 3, ln 4 minus ln 4, तो ln 4, and इससे definite integration is over. Thank you guys.